आज बच्चों हम करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ हम देखेंगे तो वेरियस जो टेबुलर वैल्यू होता है 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री हम कैसे निकालेंगे और उसको लेके हम कैसे नंबर सॉल्व करेंगे, ये पार्ट में वो मेंशन किया गया है। तो लास्ट पार्ट में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक तो लेक्चर दिया था और उसमें समझा दिया तो तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ कहाँ उसका एप्लीकेशन है, उसका मीनिंग क्या है। बट आज हम पढ़ेंगे यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एक वीडियो में, और आप लोग भी देख लेना उसको ध्यान से और सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक भी कर लेना, ठीक है। सो नाउ कम टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेकेंड पार्ट। So trigonometric ratio of 45 degree, trigonometric ratio of 45 degree, how it is possible, कैसे होता है हम देखते हैं। So this is a right triangle, A B C is a right triangle and 90 degree at point at B. Let two sides AB is A and BC is A. So according to Pythagoras theorem, we can find out the value of AC. AC is the hypotenuse, AB is the perpendicular and BC is the base. So AC equal to AB square plus BC square root over, so A square plus A square 2A square, 2A square root over, that will become root 2A. So in order to find the various trigonometric ratio of 45 degree, we take suppose sin C, this angle is C, sin 6, that is P by H. That's how our P is AB and H is AC. A by root 2A, that's A cancel to A, we get 1 by root 2. Like that cos C, that should become B by H, that should BC by AC, BC by AC, that should A by root 2A. So A cancel A, what we get? 1 by root 2. Like tan C, tan C becomes sin C by cos C. Or that's your P by B, that means AB by BC, AB by BC, AB become A and BC is A cancel A, so what we get? 1. Like cosec C, that's a reciprocal of sin C, that's your cosec C, so 1 by sin C, or what do you see? Cosec C मतलब H by P, that's your AC by AB, AC by AB, so A cancel A, thus you get the root 2. Like sec C, sec C is the reciprocal of cos C, that should become AC by BC, root A, root 2A by A cancel A, what you get? Root 2. Cot C, that's your reciprocal of tan C, that's your BC by AB, that's A cancel A, so we get 1. So in this way we can find out the various trigonometric ratio by taking the various sides of the right triangle ABC, and we can find out the value of 45 degree. तो यहाँ हम 45 डिग्री कैसे निकाल रहे हैं आप लोगों को तो पता है। तो यहाँ राइट ट्रायंगल को ले रहे हैं, B 90 डिग्री है, C 45 डिग्री है, A 45 डिग्री है, तो ये एसोसियल ट्रायंगल बन रहा है। एसोसियल ट्रायंगल का दोनों साइड AB और AC इक्वल हो रहा है, उसका रेशियो को लेके हम क्या करेंगे, AB और AC को लेके पिथागोरस थ्योरम डाल के AC का वैल्यू निकाल देते हैं। निकालने के बाद हम वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल देते हैं, जैसे sin C, cos C, tan C, cosec C, sec C and cot C. Now how can we find out the 60 degree वैल्यू ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। 30 डिग्री 60 डिग्री कैसे निकालेंगे। मान लो ABC एक ट्रायंगल है और यहाँ A से BC के ऊपर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, नाउ 90 डिग्री है। लेट एंगल B 60 डिग्री, एंगल A इज दिस पोर्शन इज योर 30 डिग्री। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, let BC equal to 2A and AC also 2A and AB is also 2A. That's your triangle, equilateral triangle. All the sides are equal. That's why having the sides 2A, 2A and 2A. So in order to find the value of BD, H I am taking A, मैं ले रहा हूँ AD को
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ 90 डिग्री भी बनाएगा और ये एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। तो ये तीनों एंगल हमारा 60-60 होगा। तो ये एंगल जो बाइसेक्ट कर दिया, हम देखते हैं 30 ये हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 90 है। तो यहाँ अगर मैं ये एंगल का मेजर्स लूंगा तो पहले मेरे को एडी को निकालना पड़ेगा, बिकॉज एडी इज द परपेंडिकुलर हियर। एडी निकालने के लिए क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम h² माइनस p² का रूट ओवर। h हमारा क्या है यहाँ 2a और p क्या है a, 2a² माइनस a², दैट्स 4a² माइनस a², दैट्स बिकम 3a², root over 3a², that's root 3a. Now we can find out the various trigonometric ratio. That's you see sin b, that's become 60 degree. So that I am taking AD by AB. That's AD by AB. That's root 3a by 2a. That's a cancel है. That become root 3 by 2. Like cos b. That's your BD by AB, BD by AB, BD is A and AB is 2A, A cancel A, what we get? हमको क्या मिल रहा है अभी बच्चों 1/2। 10b ऐसे निकाल लेंगे हम AD by BD, हमारा AD by BD, AD हम तो पहले से निकाल चुके हैं, रूट 3A by A कैंसिल हो गया तो हमको मिला रूट 3। लाइक दैट अगर हम चाहते हैं कोसेक बी, दैट्स 1 by sin b, दैट्स रेसिप्रोकल ऑफ sin 1 by root 3 by 2, दैट्स 2 by root 3। लाइक sec b, दैट्स रेसिप्रोकल ऑफ cos b, 1 by cos b, तो 1 by 1 by 2 हो गया तो 2 निकल गया। कट b हमारा रेसिप्रोकल ऑफ 10b, 1 by 10b, ये हो गया 1 by रूट 3। ऐसे हम निकाल सकते हो। बच्चों समझ में आ रहा है आपको 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालोगे। अभी 30 डिग्री का मान लो, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो ये 90 डिग्री है, ये आप 30 डिग्री अगर हुआ तो आपका एडी बेस बन जाएगा और बीडी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। बीडी क्या होगा परपेंडिकुलर और एडी आपका बेस होगा। तो फिर हम 30 डिग्री का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मान लो साइन ए क्या होगा बीडी बाय ए बी, बीडी बाय ए बी, ए बाय 2a, ए कैंसिल हो गया हमको हाफ मिला। फिर कॉसे का क्या होगा हमारा b बाय एच, बी हमारा क्या है यहाँ एडी और हमारा h है ए बी, रूट 3a बाय रूट 2a, दैट ए कैंसिल a, रूट 3 बाय 2। 10a ऐसे 10a भी हम निकाल सकते हैं। 10a क्या होगा p बाय b, दैट्स bd बाय एडी, बीडी कितना है हाफ और एडी है रूट 3 बाय 2, 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1 बाय रूट 3। लाइक बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कोसेक हम कैसे निकालेंगे 1 बाय साइन ए करके निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा 2। सेगे कैसे निकालेंगे 1 बाय कोसे करेंगे तो वो 2 बाय रूट 3 निकल जाएगा और कॉटे निकालेंगे तो 1 बाय 10 करने से रूट 3 निकल जाएगा। ऐसे हम सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी हम चलते हैं 0 डिग्री का कैसे निकालेंगे और वैल्यू ऑफ 0 डिग्री इन ट्रिग्नोमेट्री हम कैसे निकालेंगे वो वैल्यू। टू फाइंड आउट द 0 डिग्री हम क्या करते हैं, मान लो साइन सी का वैल्यू निकालना है। साइन ये 0 डिग्री जब होगा हम कैसे 0 डिग्री होगा, ये जैसे राइट ट्रायंगल आप लोग देख रहे हो ABC राइट ट्रायंगल, B 90 डिग्री है, तो जब AC कंसाइड करेगा किसके ऊपर BC के ऊपर, जब कंसाइड करेगा जिसके उसके ऊपर अगर मिल जाएगा तो फिर क्या होगा हमारा एंगल C 0 हो जाएगा। तो एंगल C 0 जब बनेगा साइन C क्या होता है हमारा P बाय H, हमारा P 0 हो गया और H का वैल्यू AC है। तो अभी क्या होगा 0 बाय समथिंग 0 हो गया। ठीक है। लाइक cos C, आप देखते हो cos C करने से ये हमारा तो यहाँ हमारा क्या हुआ, हम एक बार लिख देते हैं यहाँ समझ में आ जाएगा। आपका वैल्यू यहाँ AB बाय BC AC ये 0 हो गया, फिर AC इक्वल टू 0। ओके, नाउ हम देखते हैं cos C का वैल्यू लेते हैं B बाय BC और AC तो बराबर हो गया, अभी BC बाय AC अभी 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी हम देखते हैं tan C sin C बाय cos C, 0 बाय 1 आपका क्या निकलेगा 0 ही निकलेगा। 0 को जितना भाग करो अब 0 ही तो होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फिर आप
कोसेक सी अगर निकालना है, कोसेक वैल्यू अगर निकालना है उसको कोसेक, तो फिर क्या हुआ 1/sin c करने से 1/sin c करने से इन्फिनिटी निकल जाएगा आपका। 1/0 क्या होगा आपका इन्फिनिटी होगा। सेक सी क्या होगा 1/cos c, तो ये 1/1 क्या होगा 1 ही होगा। फिर tan c क्या होगा 1/cot c, 1/cot होने से क्या होगा आपका 1/0, फिर इन्फिनिटी में आ जाएंगे हम। इससे हम 0 डिग्री निकाल सकते हैं। अगर 90 डिग्री हमको निकालना है तब फिर क्या करेंगे, हमको ये जो वैल्यू है हम धीरे धीरे क्या होगा यहाँ जाके मर्ज करेगा, अब तब फिर 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री का अगर निकालना है तो ये जो साइड्स है इसको ऐसे हम करना पड़ेगा, उल्टाना पड़ेगा, तब फिर क्या होगा ये 90 डिग्री आपका बनेगा। तो 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करोगे, तो AC धीरे धीरे आके किसके साथ मर्ज करेगा, AB के साथ मर्ज करेगा, तब फिर 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री बनने से क्या होगा sin 91 P और आपका H बराबर हो गया। तो क्या होगा P और H, sin 90 डिग्री क्या होगा sin C। आप यहाँ अगर निकालना चाहते हैं ये आपका हो गया 30 डिग्री का, ये है आपका 60 डिग्री का, और ये हो गया आपका 0 डिग्री का, फिर आ रहा है हम 90 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, अब ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 45 डिग्री समझ में आ रहा है। और 90 डिग्री में आएंगे sin c मतलब, और P और H बराबर हो जाएगा, फिर होगा 1। इससे हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो आपके समझ में आता ही होगा कैसे आप सारा वैल्यू निकालेंगे, और फिर इसको लेके हमारा बाकी सारा प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो लेट अस वाइप आउट इट, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर दूसरा हम एप्लीकेशन ये एग्जांपल में जाएंगे, एक दो सॉल्व करेंगे। हाँ, ये सबको लेके कैसे सॉल्व करते हैं देखो, इसको लेके हम टेबल भी बना सकते हैं, टेबल को लेके यूज करके हम सारे नंबर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक दो करके दिखा दे रहा हूँ, तुम लोग कैसे निकालोगे। मान लो हमको दिया है एग्जांपल 1 cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इसको डायरेक्टली कुछ करना नहीं, हमको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, और sec 45 डिग्री आप cos 30 डिग्री क्या होता है आप जानते हो आप लोग 2/√3। ठीक है, और यहाँ एक टेबल भी दिया है, टेबल को रेफरेंस के लिए आप ले सकते हो चाहे तो, है कि नहीं। √3/2 यहाँ हम लेते हैं √3/2 प्लस कोसेक 30 डिग्री, हम इसको लेते हैं कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू भी आप ले सकते हो। sin 30 डिग्री हाफ मतलब कोसेक 30 डिग्री आपको कितना होगा 2 होगा। ठीक है, 2 होगा, तो आपको मिला 1/√2, यहाँ एलसीएम हो गया हमारा 2, तो √3 प्लस 4 1/√2 इंटू √3 2/√3 प्लस 4। ठीक है, ये कैंसिल हुआ तो यहाँ बचेगा हमारा √2/√3 प्लस 4। ये समझ में आ गया आपका। तो ऐसे आपको अगर डिग्री वैल्यू आपको दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो आपका डिग्री वैल्यू डाल दो, आंसर निकालो। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं सारा नंबर। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, एग्जाम्पल 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस आप sin स्क्वायर 60 डिग्री। आपको यहाँ वैल्यू डालना है। tan 45 डिग्री क्या होता है 1 होते हैं, 2 × 1 स्क्वायर, cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2
√3/2 का स्क्वायर। साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2 उसका स्क्वायर। ये हो गया आपका 2 + 3/4 - 3/4। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, आपका आंसर हो गया 2। तो बच्चों आराम से आप निकाल सकते हो सारा वैल्यू। अगर आपको पता है टेबुलर वैल्यू पता है तो आप टेबुलर वैल्यू डाल के ये सब निकालोगे। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ रहा है तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री, यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। 30 डिग्री बोलेगा 30 डिग्री निकाल सकते हो, 0 डिग्री बोला 0 डिग्री निकाल सकते हो, और 90 डिग्री बोलेगा 90 डिग्री निकाल सकते हो। वेरी इजी वन टू गो थ्रू द टेबल। टेबल को आप चाहे तो माइंड में रख सकते हो, नहीं तो चाहे तो कब जरूरत पड़ेगा तो खुद डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो और ये सब कैलकुलेशन आप कर सकते हो। पक्का? नहीं तो टेबल को थोड़ा सा आप माइंड में रखो, थोड़ा सा माइंड कर दो उसको और ये सॉल्व करो। क्लियर? ओके। मैं एक क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ आपको, ये सॉल्व करके कुछ कमेंट करना मेरे को, और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर बोलना, आई विल सॉल्व इट। ठीक है? मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करोगे आप क्वेश्चन। आप जरूर मेरे पास आंसर भेजना, तो मेरे वेबसाइट में और मेरे चैनल में साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। आगे इसका वैल्यू कितना होगा आप सॉल्व करके भेजना, एंड तो मेरे को पता भी चलेगा आप पढ़ रहे हो नहीं, आप कितना मेहनत कर रहे हो। अभी ये सीजन पढ़ाई का सीजन है, आप लॉकडाउन भी चल रहा है कोरोना के लिए, आप फायदेमंद रहोगे। क्लास 10 का अगर प्रैक्टिस हो जाता है सारा मैथमेटिक्स तो फिर एग्जाम आने के बाद आप इजीली सॉल्व करोगे, इजीली अच्छा मार्क, अच्छा अचीवमेंट हो जाएगा। यू कैन ब्रिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम। आपका रिजल्ट अच्छा होगा तो अच्छा करियर बनेगा। एंड आई एम विथ यू, मैं तो आपके साथ हूँ आपको हेल्प करने के लिए। बट गो थ्रू दिस मच फॉर टुडे।